So let me repeat again. We have a composite wall consisting of three layers. Example of this can be, for example, you have a wall of a furnace, a house consisting of layers of different materials. So in this case, we have three walls sandwiched together. Basically, these three layers are constructed of different materials. So you can see the temperature profile. The temperature profile is, sorry, the slope of the line changes with respect to location. It means that the three walls are having different slopes, and this is due to the fact that the material of which the walls are constructed is different. Since we are dealing with the steady state case, so it means the operating conditions do not change with respect to time. So हमारे पास changes in energy level of the system with respect to time zero हो जाएगी, and if we want to use energy balance in rate form for this particular case, तो हमारे पास अगर हम initially इंडिविजुअल वॉल के लिए एनर्जी बैलेंस अप्लाई करना चाहें तो वो आपके पास इस फॉर्म में होगी E dot in rate form is equal to E dot out, which means the rate of energy entering is equal to rate of energy leaving the wall. So अगर हम wall A की बात करें, so rate of energy entering is QA in. This is equal to rate of energy leaving wall A, which is QA out. Since these two are equal, so we so QA is the rate of heat passing through wall A, और ये basically rate of heat entering into wall B भी होगा, since we are dealing with steady state case. So rate of heat entering into wall B is equal to rate of heat leaving wall B, और इसे हम QB का नाम दे देंगे. Same is the case for wall C. Rate of heat entering is equal to rate of heat leaving. Since ये तीनों equal हैं, QA, QB and QC, इसको हम rename कर देंगे बस simply Q. So Q is basically rate of heat moving through this composite wall. अगर हम इन तीनों लेयर्स के लिए फोरियर्स लॉ यूज करना चाहें तो QA is equal to this. Remember KA is thermal conductivity of wall A, KB is thermal conductivity of wall B, and KC is thermal conductivity of wall C. Since QA, QB और QC तीनों इक्वल हैं, तो इनको हम इक्वली रिलेट कर सकते हैं. Remember, delta XA is thickness of wall A, delta XB is thickness of wall B, and delta XC is thickness of wall C. In this particular case, the area perpendicular to the direction of heat flow इस केस में सेम रहेगा, बिकॉज तीनों वॉल्स की जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सेम है. टेम्परेचर्स की अगर हम बात करें तो T1 is the inlet temperature of wall A,
T2 is inlet temperature of wall B and exit temperature of wall A. इसी तरह T3 is inlet temperature of wall C and exit temperature of wall B. T4 is exit temperature of wall C. Now what we will do is हम टेम्परेचर्स को इक्वेशन के एक साइड पे रहने देंगे और बेसिकली हम फाइंड करने जा रहे हैं रेट ऑफ हीट फ्लोइंग थ्रू दिस कंपोजिट वॉल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय Q. सो इन तीनों इक्वेशंस को हम ऐड कर लेंगे. So the final equation we get will be this. Now remember, T1 is inlet temperature of wall A and T4 is exit temperature of wall B. तो बेसिकली हमारे पास जो इंटरमीडिएट सेक्शंस थे इस कंपोजिट वॉल के, उनके टेम्परेचर्स इस इक्वेशन में इन्वॉल्व नहीं है. तीनों लेयर्स की थिकनेस इन्वॉल्व है, तीनों लेयर्स की थर्मल कंडक्टिविटी इन्वॉल्व है और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इन्वॉल्व है इस फाइनल इक्वेशन में, जिसे इक्वेशन 2.3 से रिप्रेजेंट किया गया है इस स्लाइड में. नाउ आपके पास ये जो फिगर है इसे नेटवर्क डायग्राम कहा जाता है और इसे कंस्ट्रक्ट किया गया है. हमने इस थर्मल सिस्टम को कंपेयर करना है एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से. सो फॉर एग्जांपल आपके पास जो सेक्शंस हैं इन लेयर्ड वॉल के, इनको अगर हम नोड्स से रिप्लेस कर लें, तो इलेक्ट्रिकल एनालॉजी में हमारे पास टेम्परेचर को हम रिप्लेस कर देंगे बाय वोल्टेज. और ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास ये नेटवर्क डायग्राम ऑब्टेन हो जाए, ताकि अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए ये टेक्निक यूज़ करना चाहें तो हमारे पास सिंप्लीफाइड वर्जन होनी चाहिए. नाउ रेजिस्टेंस को, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को हम कंपेयर करेंगे थर्मल रेजिस्टेंस से. सो रिमेंबर, थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ वॉल ए हमारे पास ये टर्म है. इन दिस केस this thermal resistance is called conduction resistance. और rate of heat flowing through the wall को हम current flowing in the circuit से कंपेयर कर सकते हैं. सो अगर हम इलेक्ट्रिकल एनालॉजी की बात करें तो करंट is treated as rate of heat flow, voltage difference is treated as temperature difference, and electrical resistance is treated as thermal resistance. So in this case R thermal of, for example, wall A हमारे पास है thickness of wall A divided by thermal conductivity of wall A into cross sectional area of the wall. और इसी तरह हम वॉल B और वॉल C के लिए थर्मल रेजिस्टेंसेस की इक्वेशन लिख सकते हैं.
तो हमने ये नेटवर्क डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लिया है by using electrical analogy। इस फिगर में आर थर्मल को आर ए, आर बी और आर सी से रिप्रेजेंट किया गया है रिस्पेक्टिवली फॉर ईच वॉल। इस नेटवर्क डायग्राम को अगर आप देखें तो ये आपके पास सीरीज अरेंजमेंट के लिए है, क्योंकि हमारे पास जो लेयर्ड वॉल है वो हमारे पास सीरीज में है। अगर हमारे पास पैरेलल अरेंजमेंट हो तो हम नेटवर्क डायग्राम भी चेंज करेंगे और उसको पैरेलल अरेंजमेंट के लिए करेंगे। सो फोरियर इक्वेशन फॉर रेट ऑफ हीट फ्लो को हम थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं और थर्मल रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं, which basically gives us rate of heat flow is overall temperature difference divided by summation of thermal resistances। Remember this summation और थर्मल आपके पास तीनों लेयर की थर्मल रेजिस्टेंस का सम है। सो समेशन आर थर्मल इज आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। डेल्टा टी ओवरऑल आपके पास T1 which is initial temperature या जो first temperature of the first section minus temperature of the last section, so delta T overall is T1 minus T4। now अगर हम इस वॉल की बात करें और इस केस में हमारे पास 3 से ज़्यादा लेयर हैं, आपके पास इस केस में 6 लेयर्स हैं, इनफैक्ट 7 लेयर्स हैं, और आपके पास कम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल अरेंजमेंट है। तो जिस तरह हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस को सॉल्व करते हैं, फर्स्टली हमने इस नेटवर्क डायग्राम का आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, सेम उसी तरह जिस तरह हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के लिए करते हैं। सो वॉल बी, वॉल सी और वॉल डी के लिए विच आर पैरेलल टू ईच अदर, उसके लिए हम आर इक्विवेलेंट फाइंड कर लेंगे। वॉल एफ और जी के लिए आर इक्विवेलेंट फाइंड कर लेंगे, एंड देन हम इस इंटायर वॉल के लिए आर थर्मल फाइंड कर लेंगे, और हम and then we can write rate of heat flow equation in form of delta T overall divided by summation R thermal। now in case of radial system, for example हमारे पास एक ट्यूब है जिसको हम इंसुलेट करना चाह रहे हैं, या एक पाइप है जिसको हम इंसुलेट करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर हमने एक मटेरियल रैप कर ली है, तो हमारे पास एक एडिशनल लेयर आ जाएगी। उस केस में हमारे पास जो आर थर्मल है उसमें थोड़ी बहुत चेंज आएगी। नाउ इसको डिस्कस करते हैं।